Welcome friends and my dear students. Today we are going to solve numerical based on current electricity chapter. So current electricity numerical. So these are basically textbook numericals, that is your HSC board textbook numericals. They are on page number 229. So we say textbook page number 229. Okay, is from where I'm going to solve numericals. So it is suggestible कि आप टेक्स्ट बुक ओपन रखिए. इंस्टेड टेक्स्ट बुक ओपन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे, बट द बेटर ऑप्शन इज कि आप टेक्स्ट बुक ओपन रखिए. तो जैसे जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल्स की डिटेल्स देते जाऊंगी, आप वहाँ पर टिक मार्क या सर्कल कैसे भी आप उसे मार्क कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So numericals, they basically start from question number 10. Now question number 10, 11, it's based on Kirchhoff's voltage law, and question number 19. So question number 10, question number 11 and question number 19 are already solved in Kirchhoff's voltage law numerical topics. The link is given in the description box below. You can go and check it out. Kirchhoff's voltage law numericals. Question number 10, 11 and 19 is being solved there. So the next question which I am solving now is question number 12. So just read it out the question for you. A voltmeter has resistance 30 ohms. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volts having internal resistance 10 ohms? सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आपको क्या पूछा है. सो उन्होंने कहा है एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम्स है. सो इसे गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 30 ओम्स. देन नेक्स्ट इट सेज इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 2 volts. सो अ EMF 2 volt cell is connected across it. Having internal resistance 10 ohms. So internal resistance हमें सेल का दिया हुआ है 10 ohms. What I need to find? मैं क्या फाइंड करना है? मैं फाइंड करना है what will be the reading when it is connected across the cell. मतलब वोल्टेज across the voltmeter terminal हमें फाइंड करना है. वोल्टेज across voltmeter terminal. सो बेसिकली हम यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करने वाले हैं. तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ओम्स लॉ का. सो इसे V इज इक्वल टू IR. नाउ व्हाट इज करंट? करंट इज EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. सो बेसिक ओम्स लॉ पे ये क्वेश्चन डिपेंडेड है. टोटल रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर प्लस internal resistance of the cell. Internal resistance of the cell is 10 and resistance of the voltmeter is 30. So we say E by 30 plus 10, or you can write it down as R plus small r as well and then substitute. So we say V is equal to 2 upon 30 plus 10 times capital R, that is 30. 2 upon 40 times 30. 0 0 cancel, 2 1s are 2, 2 2s are 4. I get it as 3 by 2. That is nothing but approximately 1.5 volts. So voltage reading here will be 1.5 volts. Let's go to next question. Next question is question number 13. I'll read it out for you. A set of 3 coils having resistance 10 ohms, 12 ohms and 15 ohms are connected in parallel. This combination is connected in series with series combination of 3 coils of the same resistance. Calculate the total resistance and the current through the circuit if a battery of EMF 4.1 volts is used for drawing the current. So चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 3 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है. सो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड दिखा देंगे. से ये हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं जिन्हें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं. दिस इज 10 ohms, दिस इज 12 ohms एंड दिस इज 15 ohms.
फिर आगे उन्होंने कहा है कि यही इसी वैल्यू के सेम रेजिस्टेंस आपको सीरीज़ में भी कनेक्ट करने हैं। तो इसी वैल्यू के सेम रेजिस्टेंस हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे, 10 ohms, 12 ohms एंड 15 ohms। ओके, फिर इसके अक्रॉस लगाया उन्होंने एक सेल ऑफ EMF 1.4 volts। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल करंट हमें फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना होगा। सो पहले हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। से रिजल्टेंट ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज RP। पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फर्स्ट रेजिस्टेंस को R1 कह देते हैं, सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ओके, आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो। 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। 10, 12 और 15 का अगर आप LCM लोगे, 10, 12, 15, सो 5 का टेबल दिख रहा है, 2 ज़ा 12 एज इट इज़, 3 ज़ा ओके, 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 एज इट इज़, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। देन आप डायरेक्टली 2 का टेबल यूज़ कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 2 1 1 1, so we get 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। so I need to make everything 60. To make everything 60, so I'll multiply first part with 10, so it is nothing but 6 by 60। तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 ज़ा 60, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 ज़ा 60। so I get this as 6 plus, you can take it together, 6 plus 5 plus 4 whole upon 60। 6 plus 5, 11, 11 plus 4, 15, 15 by 60, it comes to be 1 by 4. Okay, now this is 1 by RP. 1 by RP is 1 by 4. Therefore, what will be equivalent in parallel combination? Equivalent in parallel combination will be 4 ohms. Now this 4 ohms is connected in series with 10, 12 and 15. So we say this 4 ohms is connected in series with 10, 12 and 15. तो इसी सर्किट का अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो वो कैसे दिखेगा? सो यहाँ पे ये आ गया रिजल्टेंट 4 ohms. सो वी से RP इज इक्वल टू 4 ohms. इसको आप कह दीजिए R4, R5, R6. So 4 ohms is connected in terms of R4, that is 10 ohms, in series with R5, that is 12 ohms, in series with R6, that is 15 ohms, and is further connected to a 1.4 volt battery. ठीक है, ये आ गया इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। इक्विवेलेंट सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, R series is simply RP plus R4 plus R5 plus R6. सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 4 plus 10 plus 12 plus 15. 4 plus 10 plus 12 plus 15. So 10 plus 12 will give me 22. 22 plus 4 will give me 26. 26 plus 15 will give me 41 ohms. Okay, so my series combination comes to be 41 ohms. So this series combination is nothing but my R equivalent, क्योंकि सारे ही resistance हमने इसमें ले लिए. So this is my total resistance. Then what will be current? So Ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V by R. So it is nothing but EMF upon R equivalent. How much is the EMF? EMF is 1.4. 1.4? Nope, it is 4.1. So sorry, it is 4.1 volts. So EMF is 4.1 volts and R equivalent is 41. Shift 1 decimal becomes 41 by 410, 1 by 10, 0.1 amperes.
0.1 amperes. So total current 0.1 amperes and total resistance 41 ohms. Let's go to next question. So we just solved question number 13 from page number 229. चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18. सो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 ये हमने ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर टॉपिक में कवर किए हुए हैं. सो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर इस तरह से लेक्चर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यू कैन चेक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अब हम आगे जा रहे हैं. विल गो टू क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 15? व्हेन टू सेल्स ऑफ EMF एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, आप E1 E2 भी ले सकते हो, आर कनेक्टेड इन सीरीज so as to assist each other. Their balancing length on the potentiometer is found to be 2.7 meters. When the cells are connected in series so as to oppose each other, the balancing length is found to be 0.3 meter. Compare the EMF of the two cells. अब इस क्वेश्चन का जो बेस है वो हमने पोटेंशियोमीटर टॉपिक में कवर किया हुआ है. अगर आपने पोटेंशियोमीटर टॉपिक स्टडी नहीं किया हुआ है, प्लीज़ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप पोटेंशियोमीटर टॉपिक स्टडी कीजिए, तो उसमें आपको समझ में आएगा सम एंड डिफरेंस, सपोर्ट एंड अपोज का मीनिंग क्या होता है. सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? सो देयर आर टू सेल्स, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2. ये दो सेल्स हैं. बारी बारी से ये दो सेल्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि वो एक बार सपोर्ट करेंगे और एक बार एक दूसरे को अपोज करेंगे. लेंथ दिया हुआ है से L1 इज 2.7 मीटर्स. सो गिवन लेंथ इज 2.7 meters. We are doing question number 15. Given length 1 is 2.7 meters and length 2 is given to us as 0.3 meters. हमें फाइंड क्या करना है? सो हमें फाइंड करना है EMFs का रेशियो से E1 अपॉन E2. ओके, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? सो फॉर्मूला यूज़ करेंगे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. L1 माइनस L2. ओके, ये फॉर्मूला हमें इसमें यूज़ करना है. सो व्हाट इज L1? L1 इज 2.7 प्लस 0.3 देन 2.7 minus 0.3. So this comes to be 3.0 by 2.4, that is 30 by 24. So if I simplify it by the table of 6, 6 5s are 30, 6 4s are 24. Ratio of E1 upon E2 comes to be 5 by 4. Ratio of E1 upon E2 comes to be 5 by 4. Simple numerical it was. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको जैसे पहले बताया कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 16. द EMF ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर of potentiometer wire. When the cell is shunted by a resistance of 10 ohms, the balancing length is reduced by 20 centimeter. Find the internal resistance of the cell. So चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने कहा है EMF of the cell is balanced by a length of 120 centimeter potentiometer wire. So initially potentiometer wire का लेंथ कितना है? इनिशियली पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ 120 सेंटीमीटर है. अब इस 120 सेंटीमीटर वायर को 10 ओम्स का रेजिस्टेंस जब शंट करेंगे तो न्यू लेंथ थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है एंड इट इज़ डिक्रीज बाय और रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर. सो जो न्यू लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर से डिक्रीज होगा. So 120 centimeter minus 20 centimeter, it gives me 100 centimeter. क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम. पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था. और इसके अलावा हमें जो शंटेड रेजिस्टेंस वैल्यू दिया है वो है 10 ओम्स. हमें फाइंड क्या करना है? सो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड करना है. इंटरनल रेजिस्टेंस.
चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। सो R इज इक्वल टू L1/L2 - 1 टाइम्स कैपिटल R. Substitute the values. 120/100 minus 1 times capital R. 0 0 cancel. 2 6 are 12, 2 5 are 10, minus 1 times 10. 6 minus 5/5 times 10. 1/5 times 10. 5 1s are 5 2s are. So internal resistance comes to be 2 ohms. So this we are done with question number 16. चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 18. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 17 18 पोटेंशियोमीटर में हमने कर दिया. क्वेश्चन नंबर 19 किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में कर दिया. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. अब बचा है क्वेश्चन नंबर 20. सो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं. अ वोल्टमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volts and internal resistance 20 ohms? सो क्वेश्चन नंबर 20 ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. सिंपल ओम्स लॉ पे ये डिपेंड कर रहा है. इसमें हमें उन्होंने रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ohms, EMFs दिया हुआ है 2 volts और इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है 20 ohms. सो रेजिस्टेंस 100 ohms, इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ohms एंड EMF कितना था? एंड EMF दिया हुआ है 2 volts. ओके हमें फाइंड क्या करना है? सो वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस. सो वी नीड टू कैलकुलेट जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था सेम इस तरह का क्वेश्चन है ये. हमें फाइंड करना है वोल्टमीटर रीडिंग. वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा? सो वोल्टमीटर ऑब्वियसली वोल्टेज रीडिंग देगा. तो हमें वोल्टेज फाइंड करना है. ओम्स लॉ यूज करेंगे. V इज इक्वल टू IR. ओके how much will be the current here? So current will be total EMF upon total resistance. So V comes to be E upon R plus R times R. Okay सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So 2 volts upon 100 plus 20 times capital R, that is 100. So you get 200 divided by 120. 20 divided by 12. 4 5s are 20. 4 3s are 12. So potential comes to be 5/3 volts. Or you can also convert it into decimals. So that is nothing but 1.66 volts approx. So we say potential is approximately 1.66 volts. So या तो आप वैल्यू को फ्रैक्शन में रखिए या आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए. तो आपका आंसर आ जाएगा 1.66 वोल्ट्स. यहाँ पे आपका आंसर है 2 ohms और यहाँ पे आंसर है 5/4. और इस 5/4 को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो 5/4 डेसिमल में होता है 1.25 अप्रॉक्स. सो माई E1 upon E2 comes to be 1.25. So E1 upon E2 is 1.25. ओके सो E1 upon E2 का वैल्यू आ गया. इसमें E1 upon E2 का वैल्यू है 1.25. आप इसको रेशियो में रखिए या आप 5/4 रेशियो में रखिए. आप डेसिमल में उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए तो वो आ जाएगा 1.25. तो यहाँ हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर कर दिए हैं. कुछ टॉपिक वाइज हमने कवर किए हैं. टॉपिक वाइज कवर्ड न्यूमेरिकल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. कौन से न्यूमेरिकल्स उसमें कवर किए हैं वो भी हमने मेंशन किया है. रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हमने आज इस लेक्चर में कवर कर दिया. क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20. ओके और 14, 17 और 18 मैंने जैसे आपको बताया पोटेंशियोमीटर टॉपिक में हमने कवर किया है. सो दैट्स इट. वी आर डन विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स. If you have liked this video, if you have understood the topic, please do share the video with your friends. Also, you can comment below and you can check the description box as well. अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद. Thank you so much.